Good afternoon, students. Today we are going to forward our syllabus, that is electron microscopy, SEM, TEM, STM. We have covered these topics. Today we will discuss X-ray and AFM. Okay, तो थोड़ा सा recap कर लेते हैं. Day before yesterday we have discussed electron microscope, its part, working principle of electron microscope. Then we had started transmission electron microscopy, its principle, its parts and its application. As I have told you that in your examination this kind of question may be asked, followed by advantages and disadvantages. Few pictures related to that was taken from the help of TEM. Cryo-electron microscopy. Here we have discussed that few samples which are specimen is created in the presence of frozen media. Then cryo-electron microscopy is used. After that we have discussed electron microscopy. Here we have discussed SEM. Principle of electron microscopy we have discussed. Okay, this part I want to repeat you again, because in this diagram the story of your SEM, TEM, STM and X-ray is embedded. As you can see, as incident light, the incident electron is falling over the specimen or subject or test sample, there is revert of few electrons. These electrons may be Auger electron, backscattered electron and secondary electron. If this process is happening, then the method of SEM will be followed. Again, this incident electron when passes through the sample, it means it gets transmitted to the sample, then the principle of TEM, transmission electron microscopy will be followed. Here you can see that few electrons are revert back in form of X-rays. If this is happening, then X-ray electroscopy or electron microscopy will be evolved. So here the parts of scanning electron microscopy, few glimpses of SEM I have discussed there. Advantage and limitation. And difference between, this is very important topic, difference between SEM and TEM, because when you are going to perform or analyze your sample either by TEM or SEM, it is very required to know what is the basic difference between TEM and SEM. ठीक है, जो TEM होता है इट इज वेरी कॉस्टली कंपेयर टू SEM, ये भी ध्यान रखेंगे. और SEM जो होता है बहुत आसानी से हो जाता है कंपेयर टू TEM. अगर आपको TEM कराना है किसी अपने सैंपल का, तो यू हैव टू रन फॉर वेरियस लैब्स, तब जाके किसी एक लैब में पता नहीं परमिशन मिले कि ना मिले. बट SEM इज इजीली फॉरवर्डेड हियर. SEM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, दिस STM इज वेरी क्लोज टू AFM. तो जो प्रिंसिपल आपका STM का है वो AFM से बहुत मिलता जुलता है. तो ये भी थोड़ा सा आपको रिलेशन आगे की ओर ध्यान देंगे इसको. How STM work, we have studied that it is a probe microscopy, और जैसे सरफेस के ऊपर ये मूव करता है इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ना डिटेक्टर, और इसका सैंपल का इमेज ड्रॉ हो जाता है. कंपोनेंट्स ऑफ STM we have discussed. एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे और ये हम लोगों ने इमेजेस लिखे थे क्वांटम कोरल के और 3D रेंडर्ड एटम्स के, हम लोगों ने इमेजेस लिखे थे. नाउ वी आर डिस्कसिंग टुडे X-rays. तो X-ray जैसा कि नाम बता रहा है, X-ray रे कम्स फ्रॉम रेडिएशन, और रेडिएशन क्या होता है, इट इज द एनर्जी. ओके, तो रेडिएशन इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो X-ray मूवमेंट जो होगा इट इज अ काइंड ऑफ वेव्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप की वेव्स निकल रही हैं जो हमारे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या जो टेस्ट सैंपल है उसमें आयनाइजेशन कर दे रही है. तो अगर वो ऐसा करती है तो वो हमारी आती है एक्सरे आयनाइजेशन में. और इस प्रकार के रेडिएशंस दैट कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ एटम आर नोन एज आयनाइजेशन रेडिएशन. दिस इज वेरी बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड X-ray. Some more examples of ionization radiations are X-ray, gamma ray, beta particle, alpha particle and neutron.
Apart from X-ray, gamma, beta and alpha, these particles are evolved from radionuclides. अब radionuclides जो होते हैं वो अल्फा बीटा गामा को इमिट करते हैं. एक्सरे जो होता है वो भी आयनाइजेशन रेडिएशन का एक पार्ट है. ठीक है. तो एक्सरे की खास बात ये है कि ये क्योंकि एमिट हो रहा है किसी पार्टिकल से, तो और इसे हम आयनाइजेशन रेडिएशन कह रहे हैं, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते, इसमें हम इसको सेंस नहीं कर सकते हैं. जैसे हम हीट को सेंस कर लेते हैं, लाइट को सेंस करते हैं, और भी चीज़ें जिनको हम सेंस कर लेते हैं, बट वी कांट सी, फील, टेस्ट और स्मेल दीज काइंड ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन. दिस इज समहाउ ड्रॉबैक with X-ray, because X-ray is very fatal. If some person is exposed in X-ray radiations, तो it may cause some harmful effect. तो what are X-rays पहले पढ़ते हैं. X-ray और आयनाइजेशन मैंने बताया. जैसे आयनाइजेशन रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन आयनाइजेशन कही जाएगी? वो जो किसी एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या स्पेसिमेन में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स उन्हें आयनाइज कर दे रही है, मूवमेंट मिलने आ रही है. तो इस तरीके की जो होती हैं उन्हें हम इसमें एक्सरे भी हमारा आता है. ये हाईली इवैक्यूएटेड हाई वोल्टेज ट्यूब से जनरेट होती है, इमिट होती है. तो जो ये आपको ग्राफ, ये इमेज दिख रहा है ना, दिस इमेज इज शोइंग सम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रिगरिंग टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम, और वहां से वो एक्सरे को इवॉल्व करता है, निकाल कर. सेकेंड लाइन इज सेइंग इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन द टारगेट एनोड. ये किसको ट्रिगर कर रहे हैं? जो हमारा टारगेट है, उसके टारगेट को जाके हिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हैवी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और उसके रेस्पेक्ट में क्या निकल रहा है? एक्सरे इवॉल्व हो रहा है. तो दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग. दिस इज वेरी ड्रॉबैक ऑफ एक्सरे. Nearly identical to gamma rays, X-ray requires shielding. Shielding means some type of covering to reduce their intensity and minimize the danger of tissue damage to personnel. Personnel here is the operator who is going to perform X-ray for a particular sample. He must be shielded. अगर वो shielded नहीं होता है तो ये X-ray उसके टिश्यूज में और ऑर्गन्स में भी जाकर के harmful effect कर सकता है. Mishap with X-rays can cause severe radiation burns and deep tissue damage. तो आते थोड़ी हिस्ट्री वाले पढ़ लेते हैं इसमें. एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक में और प्रोडक्शन में सबसे पहले जो सबसे बड़ा रोल था वो फिजिसिस्ट W.C. रॉन्गटन थे. 1895 के उन्होंने सबसे पहले एक्सीडेंटली इसको खोजा. उन्होंने देखा कि ये फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो एक हमने उसमें रखा है, कैथोड रे चैम्बर में रखा है, तो वो ग्लो कर रहा है. ठीक है, मतलब एक मटेरियल है वो उन्होंने कैथोड रे ट्यूब में रखा था, देखा वो ग्लो क्यों कर रहा है. तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही होगा, कोई प्रोसेस हो रही होगी क्योंकि फ्लोरोसेंट है इसलिए ग्लो कर रहा है. और ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही चीज़ सोचा. लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में डीप अध्ययन किया, आगे इसको देखा, तो पता चला कि एक्सरे थी जो कि एक तरीके की अल्ट्रा, पहले सोचा गया, सम साइंटिस्ट ने सोचा कि एक्सरे इज अ काइंड ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, लेकिन इसको उस वक्त भी प्रूव नहीं किया गया. 1912 में कंफर्म हुआ कि एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और ये क्या कहते हैं, यही पॉजिटिव थी उस ग्लो की, जो ग्लो वहाँ पे आ रहा था फ्लोरोसेंट मटेरियल का, उसके लिए. और कुछ इंफॉर्मेशन है एक्सरे के बारे में. जैसे इसका जो वेवलेंथ है वो 10 नैनोमीटर से 0.001 नैनोमीटर के रेंज में आता है. एक्सरे ऑक्यूपाई द रेंज बिटवीन यूवी लाइट एंड गामा रेज. अभी हम आपको इमेज दिखाएंगे किस प्रकार से ये उन दोनों लाइट के बीच में फॉल होता है. The definition of the upper and lower wavelength limit is more or less arbitrary and not marked as, मतलब कोई particular reason नहीं है इनका. 10 नैनोमीटर से 0.001 नैनोमीटर के होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली कोई कह नहीं सकता कि एक्सरे का ये रेंज है. रेडिएशन इन दिस रीजन इज यूजुअली नेम्ड आफ्टर द मैकेनिज्म ऑफ इमिशन. गामा रेज आर रिलीज्ड बाय न्यूक्लियर प्रोसेस. मैंने आपको बताया कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं से इमिट होने वाली रेज हैं, जबकि एक्सरे ऐसा नहीं है. तो नेक्स्ट ये है, कम टू द मेजर कंपोनेंट ऑफ, जैसे बताया कि ये हम लोगों ने प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया एक्सरे का. ठीक है, एक्सरे क्या होते हैं? जब कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करता है या टकराता है किसी सैंपल से या किसी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग टेस्ट सैंपल से, तो वो रिवर्स में एक्सरे को प्रोड्यूस कर रहा है. एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई और एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या थी, हम लोगों ने डिस्कस किया. अब आते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्सरे. तो कह रहे हैं एक्सरे ट्यूब अगर किसी है तो उसके 4 कंपोनेंट होंगे जो बहुत मेजर है. पहला है कैथोड. कैथोड क्या है? इलेक्ट्रॉन सोर्स है. इलेक्ट्रॉन सोर्स मीन्स इट विल जनरेट हाई स्पीडी वेव इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा है एनोड. एनोड क्या है? एक्सेलरेशन पोटेंशियल है.
जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनोड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन के प्रोसेस में एक्सेलरेट हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, जो सोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं वो हाई स्पीड से भागेगी टुवर्ड्स एनोड। फिर नेक्स्ट है टारगेट डिवाइस। टारगेट डिवाइस मीन्स टकराएंगे किससे, एक हमें टारगेट डिवाइस चाहिए होगा। जनरली वो टारगेट डिवाइस एक मेटल रहता है, तो मेटल से जाके ये कैथोड के इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। एनोड का काम रहेगा उसको पोटेंशिएट करना, और इस तरीके से क्या कहते हैं डिटेक्टर में हमारा ये डिटेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए हमें वैक्यूम ट्यूब भी चाहिए। तो दिस इज द एक्सरे ट्यूब। जरा इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस इज एक्सरे ट्यूब। Here it is a filamentous, that is cathode in nature. This is emitting electrons. These electrons are getting their speed with the effect of anode that is attached here. Okay. Here is metal target. टारगेट है जो टंगस्टन का है। इस मेटल टारगेट में ये स्पीडी वे के इलेक्ट्रॉन जाकर के टकराते हैं, और जैसे टकराते हैं ये रिवर्स में वेव लाइक रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे जब हम लोग कहते हैं ना वेव लाइक, जरूर बताना है हमें। अब इसको सीधे जैसे अभी हम लोगों ने टेन देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन रिवर्ट हो गया तो सीधे लाइन से इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। लेकिन जब भी कभी एक्सरे को रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी लाइक वेव। ठीक है, रेडिएशन है बिकॉज इट इज। तो दिस वॉज एक्सरे ट्यूब, सिंपल ट्यूब दैट इज इनबिल्ट इन द एनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आपके सिलेबस में जो कंटेंट है वो एक्सरे नहीं है, एक्सरे माइक्रोस्कोप है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एक्सरे। मीन्स एक्सरे कैसे निकल रही है। अब ये जो एक्सरे रेडिएशंस निकली हैं ये SEM और TEM दोनों में अटैच कर दी जाती है असेंबली। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या कहते हैं डिटेक्ट करते हैं, अपने सैंपल को विजुलाइज करते हैं। तो जैसे SEM में और TEM में हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, तो ये वाले एक्सरे इनबिल्ट जो माइक्रोस्कोपी होते हैं उसमें एक्सरे की मूवमेंट से जो इमेज बन करके आती है उसको हम लोग विजुलाइज करते हैं। देयर इज सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ एक्सरे। एक तो आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया, जो हमारे ऊपर एस्ट्रोराइड्स हैं वो भी एक्सरे इमिट करते हैं, और नेचुरली अकरिंग रेडियो न्यूक्लियाइड भी समहाउ प्रोड्यूस करते हैं एक्सरेज। कुछ आर्टिफिशियल सोर्स भी हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये एक मैंने लिखा ब्रैकीथेरेपी। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैं पढ़ के आई होता क्या है ये बताइए क्या मुझे क्या बताइए। CH भाई ना, ब्रैकीथेरेपी एक थेरेपी जैसे नाम लिया है। ठीक है, तो अधिकतर ये कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए थेरेपी का यूज होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरे। हमने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस को हम पेशेंट को दे रहे हैं। इस पेशेंट को जैसे हमने इम्प्लांट किया या दिया, ये डिवाइस जैसे जो खाने पे भी देंगे, इम्प्लांटेशन की टेक्निक होती है, पेशेंट में इम्प्लांट कर देते हैं। जब कर देंगे तो वहां पे कुछ ट्रिगर्स होंगे। इन ट्रिगर्स का काम क्या है, एक्टिवेट करना। तो ट्रिगर्स क्या करेंगे, इसके अंदर जो चीजें हैं उसको ट्रिगर करेंगे, और इन रेस्पॉन्स एक्सरे जनरेट होगी, और ये एक्सरे क्या करेंगी, किल करेंगी उस सेल्स को जो हमारी टारगेटेड सेल्स है। तो इसको कहते हैं ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने टारगेट को ऐसे कैप्चर कर रखा है कि उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सरे की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो एक्सरे लेजर, तो देयर आर वेरी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ एक्सरे। नेक्स्ट इज रेंज। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द बेसिक रेंज ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे जब भी डिस्कशन करते हैं तो लाइट में आते हैं, हमको आना पड़ता है। इसको डिस्कस करने के लिए हमें लाइट में आना पड़ता है, और लाइट का जो रेंज यहाँ पे इन्होंने विजिबल लाइट का सोर्स दे रखा है 400 से 800 नैनोमीटर। आप लोगों ने यूवी भी जब परफॉर्म की होगी तो यूवी का यूवी किया होगा ना आप लोगों ने, कभी एनालाइज किया यूवी से कोई सैंपल, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कोई सैंपल एनालाइज किया है? तो उसका जो रेंज है ना वो 400 से 800 नैनोमीटर रखा गया है। तो इसमें विजिबल वाले का 400 से 800 है। अगर केवल प्योर यूवी की बात करें तो 200 से 400 यूवी को रखा गया है। तो यूवी विजिबल जब बात करते हैं तो 800 तक आ जाता है। इन्होंने जब इसको और एक्सप्लोर किया तो पता चला विजिबल लाइट में इतने सारे वेव्स आ जाते हैं। रेडियो वेव्स भी आ गए, इंफ्रारेड भी आ गए, यूवी भी आ गया, एक्सरे भी आ गया, गामा भी आ गया। तो हम देखेंगे एक्सरे जो है वो यूवी
बीच में आ रहा है रेडिएशन, दिस रेडिएशन पास बिटवीन गामा एंड यूवी। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। इसको जरा आप लोग भी जरा चेक कर लेंगे व्हाट इज द एक्चुअल रेंज ऑफ एक्सरे। मुझे दो जगह अलग अलग रेंज मिली है, तो यहाँ पर 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर रेंज डिस्प्ले किया गया है। अच्छा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ डिक्रीजिंग एनर्जी, ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये बता रहा है वेवलेंथ हमारी बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो एक्सरे है ना वो शॉर्ट वेवलेंथ में आता है, ठीक है। और सेम और क्या कहते हैं आपका ये जो टेम था वो भी आपके शॉर्ट वेवलेंथ को रिपोर्ट कर रहा था। उस वेवलेंथ में जो आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स वो उस पर कंसिडर किए जाते हैं। ये विजिबल है सबके लिए यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट भी इसका लिखा है, कैसे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ एक्सरे का। तो पता चला कि 1895 में सबसे पहले उन्होंने रॉन्टजन ने इसको देखा, फिर 1901 में इनको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज। 1913 में एक इसको अटैच करने के लिए कॉलेज ट्यूब का डेवलपमेंट किया गया, और फिर 1973 में फिर सीटी स्कैन क्या होता है ना, सीटी स्कैन करा रहे हैं पेशेंट, उसे कहते क्या है, ये टोमोग्राफी होती है, ठीक है, टोमोग्राफी को कहते हैं। तो टोमोग्राफी में आपका पूरा जो मॉर्फोलॉजी है, सारी जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की देख रहे हैं वो चीज़ दिखाई पड़ जाती है। तो सीटी भी स्कैन के साथ इसके साथ ही अटैच किया गया। फिर नेक्स्ट है 1979 में इनको प्राइज मिल गया इस चीज़ के लिए, हॉल्सफील्ड को नोबेल प्राइज मिल गया, इन्होंने ये इनोवेटिव काम किया था। 1991 में एक्स-रे सिग्नल फ्रॉम थेराप्यूटिक सोर्सेज के लिए ऑब्जर्व कुछ किया गया। इस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री बना दी है इन्होंने इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट की। तो आप लोगों के लिए नोट्स अच्छे हो जाएंगे अगर आप एक्सरे की डेवलपमेंट दिखाना चाहेंगे तो। अब आते हैं व्हाई एक्सरे माइक्रोस्कोपी इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड एक्सरे माइक्रोस्कोपी। इट वाज सीन दैट एक्सरे हैज हाई पेनिट्रेशन पावर, दे कैन पेनिट्रेट डीप टिश्यू, और ये ईजियर होती है विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट से ये आसानी से अवेलेबल हो जाती है। विजिबल लाइट का सोर्स हमें करना है, इससे अच्छे तरीके से ईजी तरीके से एक्सरे हम जनरेट कर सकते हैं। सो एक्सरे माइक्रोस्कोप कैन इमेज द इनसाइड ऑफ सैंपल ओपेक और विजिबल लाइट, ठीक है। जो सैंपल विजिबल लाइट में ओपेक है, जिसके अंदर देखा नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। एक्सरे माइक्रोस्कोप कैन अचीव हायर ऑप्टिकल रिजोल्यूशन, ये दूसरा पॉइंट है क्यों एक्सरे को हम कर रहे हैं, रिक्वायर्ड कर रहे हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं विजिबल लाइट से, वी आर नॉट कंपेयरिंग इट विद SEM and TEM, बिकॉज SEM and TEM बोथ आर एडवांस लेवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, एक्सरे इज नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये रेडिएशन माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। रेडिएशन कंसेप्ट पे काम कर रहा है। ये रेडिएशन जो है इसका हम, क्योंकि रेडिएशन है तो हम रेडिएशन को दूसरे रेडिएशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने विजिबल लाइट इज आल्सो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो हम लाइट से हमने इसको कंपेयर किया है। तो इट इज सेइंग दैट एक्सरे माइक्रोस्कोप कैन अचीव हायर ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, सैंपल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है कंपेयर टू विजिबल लाइट। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज मच शॉर्टर दैन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जैसे इधर की ओर मूव करेंगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, और ये विजिबल लाइट की तरफ इशारा कर रहा है, दिखेगा। और ये हमारा जो एक्सरे है वो पुअर वेवलेंथ या कम लोअर वेवलेंथ पे बिलोंग करता है। इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसकी हाई ऑप्टिकल रिजोल्यूशन है, इसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि क्यों हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी तो देख ले रहे हैं, तो वाई इट इज रिक्वायर्ड कि हम एक्सरे माइक्रोस्कोपी पे जाएं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन कंपैरिजन हैव ए हाई इमेज रिजोल्यूशन, बिल्कुल होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, बट दे नीड अ वैक्यूम प्रूफ सैंपल। हेयर सैंपल शुड बी वैक्यूम प्रूफ। Although both the equipment require working in vacuum region, लेकिन जो सैंपल हम प्रोवाइड करेंगे चाहे वो SEM में हो चाहे SEM में हो, वहाँ वैक्यूम होना चाहिए। और अगर जहाँ वैक्यूम नहीं हुआ तो हमारा रिजोल्यूशन जो SEM का था TEM का था वो क्लियर नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि हमको एक्सरे के लिए इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी है, सैंपल को वैक्यूम प्रूफ नहीं करना है। अच्छा, ये देखो इन्होंने सॉफ्ट एक्सरे माइक्रोस्कोपी बताया है किस तरीके से अगर कोई माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोपी में एक्सरे लगा होगा, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे प्रोवाइडर है ये इसे फ्रेंजेल जोन प्लेट कहते हैं। इसका काम होता है एक्सरे प्रोवाइड करना। तो यहाँ से एक्सरे निकल रही है और ये कोइंसाइड हो रही है, ठीक है, कन्वर्जेंट हो रही है, डाइवर्जेंट नहीं हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, फोकस कर रही है सैंपल पे, और सैंपल पे ये रेडिएशन जो होते हैं, एक्सरे रेडिएशन जो जनरेट हुए हैं, वो एक क्या कहते हैं फोटो डायोड या जो डिटेक्टर है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, उस पर जाकर के डिटेक्ट हो जा रहे हैं। इस प्रकार से उनकी इमेज बन जा रही है। तो एक्सरे के जितने फायदे हैं कंपेयर टू विजिबल लाइट माइक्रोस्कोपी, उतने ही नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है कि द प्राइमरी बीम इज मोस्ट हजार्डस। जो बीम निकलती है एक्सरे की, जो रिटर्न होती है, तो उसका कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पर्टिकुलर रूट नहीं है, वो चारों तरफ निकलेगी और उसके रीजन में, उसके पेरीफेरी में जो भी आएगा वो उससे अफेक्टेड होगा। तो वही फर्स्ट टाइम बोल रहा है, द प्राइमरी बीम इज मोस्ट हजार्डस बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई एक्सपोजर रेट। मीन्स एक्सरे सो एक्सट्रीमली हाई एक्सपोजर रेट, और ये एक्सपोजर रेट 4 × 10⁵ रेडियन पर मिनट भी हो सकती है। इन्होंने बोला फॉर ऑप्टिमम एक्सपोजर के लिए 5 रेडिएशन इज सफिशिएंट। ठीक है, जो ऑपरेटर लोग काम करते हैं वो 5 रेडिएशन करते हैं, लेकिन जो जनरेट होती है उसका रेट 4 × 10⁵ रेडियन पर मिनट होती है। उसको शील्ड के थ्रू या थ्रू अदर मीन्स उसको लिमिटेड किया जाता है ताकि वो दूसरे के पास ना आ सके। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, लीकेज और स्कैटर ऑफ द प्राइमरी बीम थ्रू क्रैक्स एंड सील्डिंग। अगर जो सील्डिंग लगी उसमें क्रैक है या लीकेज है तो वो डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज है, डायरेक्ट आएगी पर्सनल के पास और उसको अफेक्ट कर सकती है। पेनिट्रेशन ऑफ द प्राइमरी बीम थ्रू द ट्यूब हाउसिंग शटर्स और डिफ्रैक्शन एपरेटस। तो ये कह रहा है कि जो हाउसिंग ट्यूब है जिसमें हमने इसको हाउस कर रखा है, रख रखा है अंदर इसको, तो वहाँ भी पेनिट्रेट करके रह सकती है, रुक जाती है। तो ये भी एक डिफ्रैक्शन अप्रोच, ये हमारे सिस्टम को बाद में इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। तो दीज आर फ्यू हजार्डस। मेन हजार्डस यही है कि पेनिट्रेशन पावर इसका बहुत है। डायग्नोस्टिक वे में एक्सरे का 2 यूज है, या तो रेडियोग्राफ बनवा दो या फ्लोरोस्कोपिक इमेज निकलवा दो। तो जो हम लोग एक्सरे नहीं करवाए थे, डिवाइस का एक्सरे का हड्डी टूट गया, एक्सरे करा लो, ये रेडियोग्राफ में आ जाएगा आपका। और ये डायग्नोस्टिक है, रेडियोलॉजी है, इसमें सारे फिजिशियन जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई ठीक है, जाके जो इंजर्ड है उसको जाकर के एक्सरे कराइए। और एक्सरे का, चेस्ट का भी एक्सरे होता है, लोग देखते हैं। एक्सरे से हम ये भी पता लगा लेते हैं कि क्या क्या अंदर, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत है, तो चेस्ट के अंदर की जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वहाँ पे, या हमारा अगर कोई टिश्यू है जो डैमेज हो रहा है, या लंग्स में हमारे जो लंग्स भी डैमेज होते हैं ना, वो सब एक्सरे के थ्रू कैप्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज इंडस्ट्रियल एक्सरे। तो इसमें अधिकतर एक्सरे में जो यूज हो रहा है ना वो इंडस्ट्रियल वे में ही हो रहा है, इम्प्योरिटी पता करने में, या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को डिटेक्ट करने में, फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करने में, फूड प्रोडक्ट में कोई एडल्टरेशन हो गया है नहीं, ये सब चीज़ें डिटेक्ट करने में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो गए यूज। नेक्स्ट वन इज एक्सरे इफेक्ट, जो हमने डिस्कस कर ही लिया है। ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर टाइम पे डिपेंड करता है, कितने ड्यूरेशन के लिए कोई पर्सन एक्सपोज हुआ है या कितना डोज उसको डिलीवर किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने बोला कि हाउ मच एनर्जी वॉज इन एक्सरे। अगर लो एनर्जी है तो डैमेज ओनली स्किन या आउटर पार्ट में है, और अगर हाई एनर्जी से आ रही है एक्सरेज तो इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर देती है। ये कुछ मैंने इमेजेस कलेक्ट की हैं एक्सरे डिवाइस रेडियोग्राफिक टेबल पे। रेडियोग्राफ टेबल पे किस प्रकार से एक्सरे डिवाइस को रखा जाता है और क्या उनका ऑपरेशन सिस्टम यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो जो फर्स्ट इमेज है ना, दिस इज ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ना, दिस कंटेन्स एक्सरे। और जब द थिंग्स विच हैव टू बी कैप्चर्ड और विच इमेज हैव टू बी कैप्चर्ड दैट शुड बी लाई इन दिस टेबल। ओके, तो अगर किसी पर्सन की ही बात करते हैं, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी पर्सन की एक्सरे इमेजिंग होनी है, उस पर्सन को यहाँ पे ये डाउन कर दिया जाएगा और इस पर्टिकुलर
असेंबली के थ्रू, जिसमें एक्सरे पहले से ही है, वो उसके थ्रू हम उसको डिटेक्ट करेंगे व्हाट एवर थिंग्स इज प्रेस्क्राइब्ड टू डिफाइन। अच्छा, दिस यूनिट इज शोइंग शील्डिंग डिवाइस। तो इस तरीके की शील्डिंग डिवाइस लगा दी जाती है सो दैट जो एक्सरेज है वो चारों तरफ प्रोलिफरेट ना करें और पर्सनल जो काम कर रहा है उसकी तरफ ना आए। तो दिस इज कंट्रोल पैनल, यहाँ से हम एक्सरे का और एक्सपोजर टाइम और उसका डोज कितना देना है। डोज मीन्स हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सरे टू बी डिलीवर्ड फॉर द स्पेसिमेन और द पेशेंट, वो यहाँ से हम इस पैनल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। दिस वन इज सम images of some X-ray devices that is attached to electron microscope। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक्सरे डिवाइस अटैच्ड है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी अटैच, दोनों इमेजेस मैंने खोल दिया। आपके सिलेबस में इट इज मेंशन्ड एक्सरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो एक्सरे का प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, एक्सरे का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। जब ये एक्सरे का जो प्रिंसिपल है उसको जब किसी स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ अटैच कर दिया जाता है तब एक्सरे डिवाइस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन जाता है। तो ये फीजिबल है, ये ट्रांसमिशन के साथ भी अटैच हो जाता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ भी अटैच हो जाता है। तो आते हैं समरी ऑफ एक्सरे। तो हमने यहाँ पढ़ा कि इन द एक्सरे माइक्रोस्कोप इमेजेस आर रिकॉर्डेड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। एक फिल्म होती है, आपने देखी होगी एक्सरे, एक्सरे नहीं आता है, एक्सरे देखें, दिस इज फोटोग्राफिक फिल्म, तो उसमें जाकर रिकॉर्ड हो जाता है। डिटेक्टेड बाई सेंसर सच एज सीसीडी कैमरा, तो ये कैमरा होता है, उसको कैमरा के थ्रू ये डिटेक्ट हो जाता है। सिमिलर टू विजिबल लाइट, एक्सरे आर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो आपको ये याद रखना है, एक्सरे जो होते हैं वो रेडिएशंस होते हैं और ये जो रेडिएशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बेस्ड होते हैं, ठीक है, और शॉर्टर वेवलेंथ पे काम करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ और हायर एनर्जी पे। ये मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी ना, दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखो, इसमें ये एरो जो बता रहा है, दिस एरो इज डिपेक्टिंग दैट एज वी मूव ऑन राइट साइड wavelength will be increased and energy will be decreased. Our X-ray lies here. Here wavelength is low and energy is high. Okay, ये याद रखना है हमको। The resolution of X-ray microscopy lies between the light microscopy and gamma। ये भी याद रखना है कि हमारा क्या कहते हैं UV और गामा के बीच ही हमारा रेंज आ रहा है और ये रेंज जो है 10 से लेके 0.01 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। ये चीज़ आप जरा से देख भी लेना। वैसे मुझे हर जगह यही मिला, एक जगह हमको मिला 0.001, तो ये जरा से कंफर्म कर लेना कि ये 10 to 0.001 है, 0.01 है, ठीक है। इस चीज़ को जरा सा आप लोग देख लेना, ये इसकी रेंज है। रिजोल्यूशन ऑफ नैनोमीटर लेवल आर अचीवेबल ड्यूरिंग यूजिंग द फ्रेस्नेल ड्यूरल प्लेट। मैंने आपको दिखाया था फ्रेस्नेल ड्यूरल प्लेट का काम होता है जो एक्सरे निकल रही है कैथोड सोर्स से उसको कन्वर्ज करना, उसको एक फोकस करना, एक पॉइंट, ठीक है। Which form the image using the soft X-ray emitted from synchrotron। synchrotron होता है synchronize करना from the laser produced plasma। Further, because of its high energy, X-ray microscope have the ability to penetrate relatively deep into the material, allowing image to be generated from the internal feature compared to TEM। X-ray microscopy can generate images from relatively thick sample। अच्छा, हमने उस दिन जो डिस्कस किया था, we have discussed that for SEM and TEM। SEM के लिए हमारा जो सैंपल जितना ज़्यादा थिन होगा उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टकरा रही हैं और यहाँ से बैक स्कैटर्ड हो जा रही है और उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं इन अवर डिटेक्टर। इन केस ऑफ टेम क्या था कि सैंपल्स जो हमारे हैं वो इंसिडेंट लाइट इलेक्ट्रॉन है वो इसको पेनिट्रेट करके नीचे आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है और ट्रांसमिट होने के बाद डिटेक्टर तक जा रही है, ओके। तो डिटेक्टर तक जा रही है तो अब इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा अगर थिक है तो चलेगा, क्यों? क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू पेनिट्रेट दिस सैंपल। तो ये वाला सबको समझ में आ रहा है, ये वाला डिफरेंस। अब ये बोल रहे हैं जो एक्सरे है
ये टेम्स में जो हमने थिकनेस सैंपल की लगाई थी उससे भी ज़्यादा थिक सैंपल में हम एक्सरे यूज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव हाई पेनिट्रेशन एबिलिटी। ठीक है, सैम के लिए सबसे पुअर सबसे थिन होना चाहिए, फिर टेम के लिए, फिर एक्सरे के लिए। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं। इन्होंने स्कैनिंग ट्रांसमिशन एक्सरे माइक्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। स्कैनिंग ट्रांसमिशन, हाँ कोई डाउट है बच्चों? बोलिए। ले सकते हैं, यस, वी कैन टेक थिन सैंपल एज वेल टू थिक सैंपल, लेकिन जब स्टेम कराएंगे तो द सैंपल मस्ट बी थिन। ठीक, क्योंकि वो सरफेस से जाके लौट जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो जितना थिन हमारा सरफेस होगा उतना ही अच्छा विजन आएगा डिटेक्टर तक। अगर थिन में ट्रांसमिट हो रही है सैंपल के थ्रू इलेक्ट्रॉन की, हाँ, तो वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ लाइजेशन तो कॉज नहीं करेगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू डैमेज टिश्यू सेल्स। ठीक है, लेकिन एक्सरे कैन डैमेज। ठीक, और हम लोग जो टेम्प और सेम कराते हैं ना, अधिकतर ये जो सैंपल्स होते हैं वो ह्यूमन के सेल्स बहुत ही रेयर, हाँ कैंसरस सेल का कराते हैं हम लोग। कैंसरस ये हम क्या करते हैं, इन विट्रो करते हैं। आप समझ रहे हैं, दो टर्म होती है, एक होती है इन विट्रो, एक होती है इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो में क्या होता है, आप आउटसाइड द बॉडी टेस्ट कर रहे हैं। तो सेम एंड टेम बोथ फॉर बोथ सैंपल्स मस्ट बी टेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। हम किसी बॉडी को नहीं डाल रहे हैं उसमें, लेकिन एक्सरे जो कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट बॉडी जा रही है, पेनिट्रेशन हो रहा है। ठीक, तो ये भी बेसिक डिफरेंस है। इसमें हमको सैंपल को बाहर लाना पड़ेगा तब करेंगे। जैसे कैंसरस सेल का अगर हमको देखना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हम कर सकते हैं, सैम और टेम कर सकते हैं, हमें ये पता चलेगा हमारे मॉर्फोलॉजी क्या आ रही है हमारे सेल्स की। ठीक है, लेकिन एक्सरे थोड़ा नहीं कर देंगे, वहाँ जाकर एक्सरे नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सरे के लिए फिर पेशेंट को जाना ही पड़ेगा, पेशेंट की बॉडी ऑर्गन का देखना ही पड़ेगा, उसको बाहर नहीं निकाल के कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलें। This slide is showing scanning transmission X-ray microscopy. So here X-ray is attached to electron scanning microscopy. तो इसको कहते हैं scanning transmission X-ray microscopy (STXM). It is a chemical imaging method that generates a microscopic image of a raster scan. मैंने बताया था raster means somewhat parallel lines. तो पैरेलल लाइंस की तरह व्यू का निकालते हैं बाय डिटेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड एक्सरे फ्रॉम द फ्यूज्ड बीम। STXM टिपिकली यूजेज अ मोनोक्रोमैटिक सॉफ्ट एक्सरे बीम। अब बात आ रही है, हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, हमने एक्सरे भी अटैच कर दिया है और ये एक्सरे बीम एक मोनोक्रोमैटिक मतलब कन्वर्ट हो रही है इन द एनर्जी रेंज ऑफ 100 to 2000 eV। ठीक है, and the energy scanned across X-ray absorption is to generate near edge X-ray absorption fine structure spectra. This is the another or advanced version of X-ray microscopy. Scanning transmission X-ray microscopy is advanced version of X-ray microscopy. Or for this we can identify एब्जॉर्प्शन एज फॉर लाइट एलिमेंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब एलिमेंटल एनालिसिस करनी होती है उसका केमिकल इमेजिंग निकालना रहता है। आप लोगों ने बहुत से पेपर्स में देखा होगा कि केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जा रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग है उसकी अगर हमें स्टडी करनी है, या ये अरेंजमेंट देखना है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर है तो उनका अरेंजमेंट, अलाइनमेंट कैसा है, उसके लिए स्कैनिंग ट्रांसमिशन एक्सरे माइक्रोस्कोपी को देखिए। few images I have gathered here, collected here. First image is X-ray image of hydrated macrophages. What is macrophage? Macrophage क्या होता है? In our body, what is macrophage? काम करते हैं डिफेंस सिस्टम में आते हैं, ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में आते हैं। इनका काम होता है जो भी फॉरेन बॉडीज है जैसे एंटीजन उसे इनकल्प कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, है ना, ये सब चीजें होती हैं।
तो जब ये ऐसा काम करेंगे तो इनके स्ट्रक्चर अल्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जब ये कभी भी फेगोसाइटोसिस होगा या पिनोसाइटोसिस होगा तो इनके स्ट्रक्चर जो बेसिक नेचुरल बेबी स्ट्रक्चर है उससे चेंज हो जाएंगे। तो वही चीज इन्होंने स्टडी एक्सरे के थ्रू किया है, एक्सरे इमेज ऑफ हाइड्रेटेड मैक्रोफेज इन मीडियम विदाउट एनी फिक्सेशन। अच्छा, फिक्सेशन इसलिए बोल दिया कि अगर आपको कोई कलर लगाना है तो कलर देख लेंगे आप, कलर फिक्सेशन, तो इन्होंने कलर का यूज नहीं किया है, इन्होंने मैक्रोफेज का स्ट्रक्चर बताया है कि ये मैक्रोफेज हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स सूलेन, वाटर सूलेन है ये। नेक्स्ट वन इज एन एक्सरे माइक्रोस्कोपी इमेज ऑफ लिविंग 10-day-old कैनोला प्लांट। तो ये कोई कैनोला प्लांट है, आप लोग जानते हो प्लांट को, उसका इन्होंने एक्सरे निकाला है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है एक्सरे। अच्छा, दिस इमेज इज माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ मैक्रोफेज इन मीडियम, ये हाई मैग्नीफाइड है। इससे जो पहले वाली प्रायर में जो इमेज दिखाई आपको इसका उन्होंने हाईली रेजोल्यूट किया, तो कुछ ऐसा इनको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, जो भी इनकी स्टडी रही हो उसको लेकर के। अच्छा, लास्ट इमेज इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए एक्सरे को अगर हम कलर मीडियम में भी ले जाते हैं, कलर फिक्सेशन में ले जा रहे हैं, वी कैन यूज एक्सरे टू आइडेंटिफाई 3-dimensional स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए सब कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है, और ये बैक्टीरिया हो गए आपके, ये आपका कोरोना से वायरस समझ लीजिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ रहा है। 3D डायमेंशन, 3D डायमेंशन कब बोलेंगे? व्हेन वी कॉल इट 3D डायमेंशन, तीनों मिल जाएगा, वो हाइट भी मिल जाए, लेंथ भी मिल जाए, ब्रेड्थ भी मिल जाए, तो देन इट विल बी नोन एज 3D स्ट्रक्चर। तो ये इस इमेज दिखाने का पर्पस ये था कि एक्सरे इज वेरी एडवांस्ड, when we use it with other electron microscope we can achieve desirable effect. This slide is very important because it contains comparison between X-ray microscope, visible light microscope and scanning electron microscope. So it is a compiled way of parameters related wavelength. तो सभी लोग याद, अगर आपको ये तैयार करना होगा तो आपको ये कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या रेंज है, वेवलेंथ रेंज है, कि विजिबल लाइट की क्या रेंज है, 400 से 800, ये हमने डिस्कस किया। एक्सरे की 0.03 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, तो मीन्स नैनोमीटर रेंज में जा रहा है, इट मीन्स वो भी कम से कम नैनो रेंज में, तो ये एक्सरे हो गया। बाकी इधर ऑप्टिकल रेजोल्यूशन जो है, पावर है, एक्सरे का 20 नैनोमीटर है, 200 नैनोमीटर है, विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप का 2 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का देयर मेनी पैरामीटर्स ऑन देयर बेसिस 3 आर कंपेयर्ड। वेवलेंथ हो गया, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन हो गया, इमेजिंग हो गया, डेप्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हाउ डेप्थ वी कैन एनालाइज द सैंपल, पॉसिबल सैंपल सारे इसमें कर सकते हैं, लेकिन स्कैनिंग के साथ ये वैक्यूम प्रूफ होना चाहिए। और इमेजिंग मोड जो है वो भी लिखे हुए हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, फुल फील्ड भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये टेक्निक है, स्कैनिंग एंड फुल फील्ड, ये नाम नहीं है, दीज आर द टेक्निक्स विच आर यूटिलाइज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग मेथड भी चलते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल भी चलते हैं। दीज आर प्रिंसिपल बिहाइंड एनी माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो बात करेंगे तो ये आपके मॉडल्स जो लिखा हुआ है, इमेजिंग मॉडल्स, दीज आर टेक्निक्स। जैसे स्कैनिंग की केस में लिखा है स्कैनिंग कर रहा है केवल, लेकिन फुल फील्ड और जो होते हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो स्कैनिंग से डिफरेंट होता है। तो ये आप प्लीज नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्कैनिंग क्या होता है, फुल फील्ड क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में वही है, बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल टूल, और हम हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर का भी कर सकते हैं। मेजर ड्रॉबैक विद सेम एंड टेन इज द सैंपल मस्ट बी ड्राई। सेम और टेन अगर करा रहे हैं तो सैंपल को ड्राई होना है, अगर मॉइस्चर होगा तो वो अंदर जाके वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो एक्सरे के साथ एडवांटेज ये है कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होंगे या हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स होंगे उनको भी हम देख सकते हैं। एक्सरे माइक्रोस्कोपी डजंट रिक्वायर सैंपल प्रोसेसिंग। अभी तक जैसे कि हम लोग सेम और टेन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सैंपल बनाना पड़ता है, उसके लिए इनके पास सैंपल होल्डर्स होते हैं, उस होल्डर पे अपना जो थिन आपने सेक्शन काटा है उसको प्लेस करना होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ऑपरेटर के लिए।
अगर ऑपरेटर ने आपके सैंपल को ठीक से प्लेस नहीं किया तो आप डिजायरेबल स्ट्रक्चर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो मैंने आपको नैनो फाइबर्स की इमेजेस दिखाई थी, जो ऐसे मैश टाइप इमेजेस थी, इट मीन्स जो ऑपरेटर है उसने उस सैंपल को इतने अच्छे तरीके से फिट किया कि जो मुझे इमेज चाहिए थी मैश लाइक स्ट्रक्चर वो उसने मुझे प्रोवाइड करके दिया। तो इट्स अप टू ऑपरेटर कि आपका सैंपल कैसे वो रख रहा है, क्योंकि बाकी काम तो इक्विपमेंट करेगा। तो सैंपल अगर आपने सही से रखा है या चाहे इस पर्टिकुलर एरिया का मुझे विजुअलाइजेशन हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे के केस में ऐसा नहीं है, एक्सरे के केस में कोई भी प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी है और कोई फिक्सिंग नहीं करनी है। इसमें फिक्सिंग मीन्स स्टेन करना पड़ता है। और जो आपका जो स्कैनिंग होता है ना, ये देखो बहुत वास्ट है स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। इसमें ऐसा नहीं कि आपने सैंपल रखा और जाके फिर एनालाइज कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको गोल्ड से कोट किया जाता है, इसके ऊपर कोटिंग, इसको कंडक्टर बनाना, कंडक्टेंस इसमें जनरेट करने के लिए, ताकि तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करें? जब उसे कंडक्टेंस मिलेगी ना, उसको जहाँ गिर रहा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की जाती है सैंपल के ऊपर, तब जाकर के सैम काम करेगा। इसी तरीके से जो टेन है इसमें कॉपर की आती है, वो मिलता ही नहीं कहीं, कॉपर की कोटिंग करना हो ही नहीं पाती है, इसलिए बहुत कॉस्टली है टेम कराना। ठीक है, तो स्कैनिंग में ये है, पेपर से ये पूछ लेते हैं आपको गोल्ड कोटिंग कराई थी तो कितने नैनोमीटर की गोल्ड कोटिंग कराई थी, ये भी क्वेश्चन पूछे। तो ये सब अगर आप फ्यूचर में कराते हैं तो आपको कराना पड़ेगा, जब रिसर्च करेंगे तो आपको ऑपरेटर से पूछना पड़ेगा कि आपने कितने थिन या थिक लेयर की गोल्ड कोटिंग की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्रोसेसिंग के हैं वो एक्सरे के साथ इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड वन इज लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ सेल इन अ नेचुरल फॉर्म रेदर देन मेयरली मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इफ द सिस्टम इज प्रॉपर्ली सेट एंड चूजन। मतलब आप एक्सरे के साथ जो आपको कोई भी नेचुरल फॉर्म का होगा आराम से कर लेंगे, इसमें आपको कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं लगानी है। इस वाले जो थर्ड पॉइंट है ना, इसका दो मीनिंग है। एक तो आप नेचुरली फॉर्म में किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हैं, दूसरा ये है क्योंकि एक्सरे जो है वो मेटल्स को बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करता है। वो बॉडी के अंदर जो मेटल्स हैं या कहीं भी कोई मेटल्स है, मैंने तो बताया ना, एक्सरे जो है वो कैथोड से निकल रहा है और एनोड उसकी स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेटल का होना जरूरी है इस प्रोसेस को गवर्न करने के लिए। तो इस वाले बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में ये बोल रहे हैं, अगर हमारे बॉडी में कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट कहाँ है, कितना है, वी कैन इवेल्युएट थ्रू एक्सरे। जैसे आयरन की इन्होंने दिया है कि आयरन हमारी बॉडी में बहुत जगह है। आयरन तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड है ना, ब्लड में तो आयरन ही है। एक हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन हीम जो है वो आपका ही है। तो अगर किसी को एनालाइज करना है कि बॉडी के अंदर कौन सा मेटल है, उसको देख सकते हैं। जैसे कैल्शियम, एक्सरे के थ्रू ऑस्टियोपोरोसिस जिन हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? हड्डियों का झड़ना, हड्डियां खराब हो जाती है। तो हड्डियां खराब हो जाती है क्यों? क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। वो सब कुछ एनालाइज हो जाता है। तो हम इसमें एक्सरे के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा बोन या टिश्यू रीजनरेशन। लोग दांतों की सर्जरी कराते हैं, दांत फिट कराते हैं, दांत का एक्सरे तो लिया जाता है, उसमें देखते हैं कि आपकी हमारी सेटिंग सही से, फिटिंग सही से हुई कि नहीं, या दांत कितना खराब, इसमें कैल्शियम की वजह से हुआ सब कुछ। ये सब चीज एनालाइज हम एक्सरे के थ्रू कर लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरे। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। मैंने आपको पहले ही बताया कि एसटीएम और एएफएम बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो आपका काम ये है, जब आप इसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इन दोनों के बीच डिफरेंस ढूंढेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएफएम एंड एसटीएम? क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोब टेक्नोलॉजी है। प्रोब का मतलब दोनों ही सरफेस पे सेंस करते हैं, चलते हैं, तो फिर डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर। तो पढ़ते हैं एएफएम के बारे में। AFM works by scanning or probe over the sample surface, building up a map of the height or topography of the surface as it goes along. जैसे जैसे मूव करता रहता है वैसे वैसे सरफेस की क्या जियोमेट्री है, टोपोग्राफी है, वो बन करके डिटेक्टर में आ जाता है।
थोड़ा सा AFM की हिस्ट्री देखते हैं। इन 1929 स्मेल्च डिस्क्राइब स्टाइलस प्रोफाइलर। अच्छा, स्टाइल ये जो लिखा टर्म है ना, स्टाइलस प्रोफाइलर, इसका मतलब होता है प्रोब करना। तो जिस कंट्री के थे उस कंट्री का उन्होंने वर्ड लिखा है कि स्टाइलस प्रोफाइलर मीन्स मूवमेंट ऑन अ सरफेस, प्रोब ऑन अ सरफेस। In 1950, Becker suggested oscillating of the probe that approaches contact with the surface. Oscillation का मतलब है something they present in the tip is going to oscillate, going to move around the surface of sample. In 1971, Young described non-contact type of stylus qualifier. इसे इन्होंने करके दिया। और AFM invented in 1986 by Vining, और इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। This is the basic structure. This is the animated view of AFM. ये सरफेस है, सरफेस है रफ सरफेस, और वहाँ पे प्रोब है जो सेंस कर रहा है इस सरफेस के स्ट्रक्चर को। थोड़ा सा AFM भी डिफरेंट है अदर माइक्रोस्कोपी से। कैसे डिफरेंस है? बिकॉज नो नीड ऑफ फोकसिंग, इल्यूमिनेशन, डेप्थ ऑफ फील्ड। इट ऑल्सो हैव हाइट इंफॉर्मेशन, हाइट कितना है। इट मेक इट सिंपल टू क्विकली मेजर द हाइट, वॉल्यूम, विड्थ ऑफ एनी फीचर ऑफ द सैंपल। ये सब चीज़ें पता हो जाती हैं। इट फिजिकली फील्स द सैंपल सरफेस। और जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपी यूज़ किए हैं उसमें हमारा जो माइक्रोस्कोपी है वो टच नहीं कर रहा सैंपल से, बट इट टचेज द सैंपल। ठीक है, दिस शार्प प्रोब बिल्डिंग ऑफ ए मैप ऑफ ए हाइट ऑफ ए सैंपल सरफेस। It provides single atomic level structure to so provide high resolution. तो ये भी high resolution देते हैं। This is the comparison between AFM and SEM and TEM. तो ये आप लोग प्लीज लर्न कर लेंगे। AFM के बारे में बात अगर करेंगे तो सैंपल पर प्रिपरेशन बहुत कम है, सेम में भी बहुत कम है, और टेम में बहुत ज़्यादा। मैंने बताया टेम इज वेरी टीडियस, इट इज़ नॉट ईजियर ऑपरेशन। रिजोल्यूशन AFM की 0.1 नैनोमीटर है, सेम की 5 नैनोमीटर है, और टेम की 0.1 नैनोमीटर। ये भी आपको रखना है यार। रिलेटिव कॉस्ट सबसे ज़्यादा टेम की है, फिर कम हो जाएगी सेम की, फिर AFM की, वो सबसे कम एक्सरे की मिलेगी आपको रिलेटिव कॉस्ट। सैंपल एनवायरमेंट कोई भी रख सकते हैं, लेकिन सेम और टेम के साथ बाउंडेशन के वैक्यूम में होना चाहिए। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब पेनिट्रेशन पावर, तो AFM की पुअर है, सभी की पुअर है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है एज कम्पेयर टू एक्सरे। यहाँ पे हम एक्सरे का भी कर सकते हैं एक साथ। सैंपल टाइप AFM में कंडक्टिव होना चाहिए या और इंसुलेटिंग भी हो सकता है, बोथ। लेकिन इन दोनों केस में मैंने क्या बताया, कंडक्टिव होना चाहिए। विदाउट कंडक्शन दे कैन नॉट बी ऑपरेटेड। टाइम फॉर इमेज फ्यू मिनट्स सभी के लिए है। AFM में हालांकि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बाकी सब में बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जा रहा है। मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू जो हम देख सकते हैं वो है, मतलब मैक्सिमम हमारा सैंपल साइज ये 100 माइक्रोन का हो सकता है, ये 1 मिलीमीटर और 100 नैनोमीटर। यानी अगर हमारा 100 नैनोमीटर का सैंपल साइज है, 10 कैन एनालाइज इट। मैक्सिमम सैंपल साइज अनलिमिटेड है, ये भी उन्होंने दे रखा है। मेजरमेंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि AFM जो है वो हाइट में भी बता रहा है, डेप्थ भी बता रहा है, लेंथ भी बता रहा है, तो 3 डायमेंशनल होगा। सेम के केस में हम लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं, लेकिन उसकी विड्थ नहीं बता सकते हैं, 2 डायमेंशनल है। और टेम भी हमारा 2 डायमेंशनल कंसीडर किया जाएगा, वैसे ये 1 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल कभी कभी जब अगर हम मेजरमेंट करते हैं वैसे तो। This image is first AFM instrument built by Vining, Potter and Gerber। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ये सबसे पहला इक्विपमेंट है जो AFM के नाम से जाना गया। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट में, दैट इज AFM इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें एक स्टेज होना चाहिए। इस स्टेज में एक क्या होगा, मूविंग AFM टिप होगी, सैंपल होल्डर होगा, 4 सेंसर होंगे। इन तीनों को मिलाकर के एक माइक्रोस्कोप स्टेज बनाया गया है। मेन यही है हमारा, इसी में ही हमारा AFM का सारा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। सेकेंड वन इज कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। इट कंटेन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड वाइब्रेशन कंट्रोलर। तो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो देख रहा है इस चीज को कंट्रोल कर रहा है, हमें कहाँ की इमेज चाहिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से डिफाइन कर सकते हैं, और वाइब्रेशन कंट्रोलर भी है इसमें। Third one is computer. The control electronic usually takes the form of large box
इंटरफेस्ड टू बोथ द माइक्रोस्कोप स्टेज एंड कंप्यूटर। तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इस चित्र के द्वारा। इस चित्र में दिखाया गया है कि हाउ AFM लुक्स लाइक। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ AFM which contain high resolution video microscope। वीडियो ही दिखाएगा, मेरे विजिबल नहीं है ये। और इसमें इसके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। हमें जो मेन हमारा पार्ट है स्टडी का वो है ये, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरा स्टडी करते हैं। दिस इज अवर सरफेस। सरफेस मीन्स द थिंग विच इज सब्जेक्टेड फॉर इमेज कैप्चरिंग वाया AFM। AFM के द्वारा जिसका इमेज लेना है वो ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक टिप दिख रही है आपको। दिस टिप इज नोन एज प्रोब, ओके, एंड दिस इज कैंटिलीवर। दिस होल पोर्शन इज स्टेज माइक्रोमीटर। ये जो हमने पढ़ा है माइक्रोस्कोप स्टेज, दिस इज माइक्रोस्कोप स्टेज। तो कैंटिलीवर जो होता है उसमें टिप लगी होती है और यहाँ पे लेजर बीम के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को पास करा रहे हैं। यहाँ पे फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है जो इसके द्वारा बनाए गए चित्र को कैप्चर कर रहा है फोटो डिटेक्टर के थ्रू। तो ये जो कैंटिलीवर है ये मूव कर, ये टिप को मूवमेंट करा रही है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ टिप। तो समथिंग लाइक दैट, जो टिप है वो ऐसा है कुछ, ठीक है। और इस तरह से सरफेस का एटम को एनालाइज करता है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं इस वाले इमेज के थ्रू। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, बिकॉज इट इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसका नाम है एटॉमिक फोर्स, मीन्स सम काइंड ऑफ फोर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी। वो फोर्सेस कौन है? वंडरवाल फोर्स हो सकते हैं, मीन्स एटम्स जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम लोग एटम्स का कर रहे हैं, ठीक है। इस एटम में जो हमारे फोर्स लग रहे हैं वो वंडरवाल फोर्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकते हैं, और केमिकल फोर्सेस, पॉली रिपल्सिव फोर्सेस, इतने सारे फोर्सेस कोई भी हो सकते हैं। अब क्या हुआ, when the tip is brought into the proximity of a sample surface, जब किसी सैंपल सरफेस की पेरीफेरी में इस टिप का एंट्रेंस होता है, फोर्सेस बिटवीन द टिप एंड सैंपल लीड टू अ डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर। ठीक है, ये टिप के एटम है, जो AFM का टिप है, और ये सरफेस के एटम है। इन दोनों के बीच इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये इंटरैक्शन जो है ये कैंटिलीवर जो है वो एनालाइज कर लेता है। समझ में आ रही बात? फिर से पढ़ लेते हैं। When the tip is brought into the proximity of a sample surface, forces between the tip and sample lead to a deflection of the cantilever according to Huxley law. This deflection is characterized by sensing the reflected laser light. ये जो laser light है ना, ये सेंस कर लेता है इस चीज को from the back side of the cantilever with the position sensitive photodiode, और इसको भेज देता है photodiode को, डिटेक्टर को। Because force signal including van der Waal, electrostatic force, Pauli repulsive forces is measured, measure कर लिए जाते हैं। Various samples including insulator can be imaged in the AFM. AFM के थ्रू कंडक्टर as well as insulator सभी को हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। This was all about principle of atomic force microscopy। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफरेंट है और सारी माइक्रोस्कोपी से। इसका नाम है एटॉमिक फोर्स। तो यहाँ पे एटम के बीच लग रहा है, किसके एटम के बीच? कैंटिलीवर से अटैच जो टिप है उसके एटम, और जो हमारे सरफेस में एटम प्रेजेंट है उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के डिफ्लेक्शन को ये कैंटिलीवर जज कर ले रहा है, एनालाइज कर ले रहा है, और ये लेजर बीम डिफ्रैक्ट हो जा रही है, डेविएट हो जा रही है, तो ये जज कर ले रहा है, और ये जो डेविएशन है वो फोटो डिटेक्टर की तरफ ट्रांसफॉर्म कर दिया जा रहा है, जिससे एक इमेज ड्रॉ होकर के आ जा रही है। तो दिस इज द एग्जाम्पल। देखेंगे, DNA प्लाज्मिड रखा हुआ है सरफेस पे हमारे। ये सरफेस हमारा DNA प्लाज्मिड का है। ये DNA डबल हेलिक्स ये हमारा सैंपल है। इसको और थोड़ा सा स्टिप ने जब एनालाइज किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो सुपर हेलिकल DNA प्लाज्मिड है, पाथ ऑफ APM टिप, ये जो AFM है ये टिप का ही पाथ है, ये डॉटेड लाइन में दिखाई पड़ रही है। ये उसको रीड करता हुआ जा रहा है और उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा है।
अब इसी को देखते हैं थोड़ा सा और एनलार्ज वर्जन में। ये AFM द्वारा लिया गया चित्र है, जो चित्र यहाँ से लिया गया है। ये मूव पार्टिकल्स हैं, ये है 6.8 किलोबाइट, केबी को किलोबाइट ही कहते हैं ना? क्या प्लाज्मिड के केस में भी केबी होता है? सुपर हेलिकल प्लाज्मिड जो होते हैं केबी वगैरह। अच्छा, तो ये 6.8 किलोबाइट का ये सुपर हेलिकल प्लाज्मिड है, उसको इन्होंने तो मुझे पता नहीं एक्चुअली, मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। केबी क्या है? किलो बेस पेयर। ओके, थैंक यू। तो मैं तो कंप्यूटर की उससे सोच रही थी, पता नहीं कैसे किलोबाइट में वो रिलेट ही नहीं कर पाई इस चीज़ को। तो ये आपके बेस पेयर्स हो गए। तो इस बेस पेयर्स को उसने ये सरफेस ये रखा हुआ सैंपल, इस सैंपल को AFM टिप ने जज किया, एनालाइज किया और इस तरीके का एक चित्र यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, जिसने इस 6.8 किलो बेस पेयर सुपर हेलिकल प्लाज्मिड को इवॉल्व करके बताया। सेम ऐसे ही इन्होंने AFM लिया है न्यूक्लियोसोम का। तो आप ये देख सकते हो कि AFM का जो पर्टिकुलर यूज हो रहा है वो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और ये प्लाज्मिड, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हो रहा है। ये उनका रेफरेंस है जहाँ से इस चीज़ को कलेक्ट किया गया है। तो इन्होंने देखा ये बेस पेयर DNA है, DNA का जूम वर्जन इन्हें दिखा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से जूम वर्जन इसका दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, और क्या है? 600 बेस पेयर DNA फ्रेगमेंट्स बाय AFM। ये AFM द्वारा लिया गया चित्र है किसका? 600 बेस पेयर DNA का। और भी कुछ क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन क्या होता है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। और ये स्पेक्ट्रिन क्या होता है? स्पेक्ट्रम प्रोटीन्स मैम ये फ्रैगमेंट्स होते हैं, स्पेक्ट्रिन मायोफैगमेंट्स होते हैं। स्पेक्ट्रिन है मेरे ख्याल से कुछ अमीनो एसिड से रिलेटेड है क्या? क्योंकि इसमें C टर्मिनल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इससे नर्व्स होती है, स्पेक्ट्रिन बैंड्स मिलते बैंड्स। ओके, तो बैंड लाइक स्ट्रक्चर क्या है ये ना ये। तो मॉलिक्यूल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्पेशली इलास्टिसिटी ऑफ द सेल। आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक्चुअली दिस टर्म इज वेरी न्यू फॉर मी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम देख लेना क्या है, जैसा कि मुझे चित्र में दिखाई पड़ रहा है। दिस इज बैंड लाइक, जैसा मैडम बोल रहे हैं, बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, बट इट कंटेन्स N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। तो मुझे लगता है कि अमीनो एसिड्स में भी N टर्मिनल और C टर्मिनल होते हैं। स्पेक्ट्रम इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। स्पेक्ट्रम इज प्रोटीन। ओके ओके, तो जस्टिफाई हो रहा है ये प्रोटीन जो होती है मैम, डिफरेंट प्रोटीन। ओके ओके, तो RBC के ऊपर प्रेजेंट हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ऐसी क्रोमेटिन तो पता था मुझे, क्रोमेटिन क्या होता है जेनेटिक्स में। कुछ लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं AFM के। अब हम लोग कंक्लूड करें, 2-3 स्लाइड ही बची हैं, खत्म है ये हमारा। चैलेंजेस है रिक्वायरमेंट ऑफ शार्प प्रोब। वो 150 होना चाहिए ना, वो बहुत शार्प होना चाहिए। द फोर्स बिटवीन प्रोब एंड सैंपल शुड बी 1 न्यूटन, ये न्यूटन का ये, और लेस देन 1 थार, THET थैट। मेरे ख्याल से इट इज रिलेटेड टू फोर्स यूनिट। द फीडबैक कंट्रोलर शुड हैव ए रैपिड कंट्रोल। जो देख रहा है कंट्रोलर, उसको रैपिड कंट्रोल होना चाहिए अपने एनालाइजर पे। हाई स्पीड कंप्यूटर दैट कैन जनरेट द इमेज, ये भी हमें चाहिए। लिमिटेशन क्या है? AFM कैन ओनली इमेज अ मैक्सिमम हाइट ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी अगर उससे ऊपर रख देंगे तो इट कैन नॉट इमेज दैट। और 150 to 150 माइक्रोमीटर से ज़्यादा एरिया को स्कैन नहीं कर पाएंगे। द स्कैनिंग स्पीड ऑफ AFM इज ऑल्सो अ लिमिटेशन, हाईली डिपेंडेंट ऑन AFM प्रोब पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, आप लोग इसे देख लेंगे, एंड दीज आर द रेफरेंसेस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर topic that was based on electron microscopy, and it contained SEM, TEM, STM, X-ray and AFM. मुझे नहीं लग रहा इस यूनिट में कुछ बच रहा है। आप लोग का सिलेबस आप देख लीजिए। आई थिंक दिस यूनिट हैज बीन कवर्ड। देख लें एक बार जरा सा, इसमें कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब नेक्स्ट लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए, है ना? एक बार देख लें आपको। लाइट माइक्रोस्कोप भी लिखा है क्या आपके सिलेबस में?
प्रेप, लीड, फ्रेट, FCS। नहीं, नीचे वाली वैसे फर्स्ट पोर्शन देखना ऊपर वाला। हाँ, वो बस कंप्लीट कर दो। बस वही मुझे प्रोवाइड किया मैंने, ठीक है? तो इसके आगे मैम 2 टॉपिक। वो दूसरे टीचर आपके लेंगे, ठीक है? तो ये वाला यूनिट कंप्लीट हो गया है और ये नोट्स मैंने इसी में सेव कर रखे PDF फाइल में। तो यू पीपल कैन टेक दिस फ्रॉम हियर। मैं PPT ग्रुप में शेयर करूँगा। ये मैंने इसमें शेयर कर दी है, ये मैंने यहाँ सेव कर दी इसको, तो आप लोग इसमें से ले लीजिएगा, ठीक है? आपको PPT चाहिए या PDF चाहिए? मेरे पास PDF is sufficient। क्या PPT? ठीक है ना, तो आप लोग ले लेना, क्योंकि मुझे नहीं, मेरी क्लास नहीं है अब,